Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the first chapter of your book Flamingo, the lesson, The Last Lesson by Alphonse Daudet. Now about the author, Alphonse Daudet was a French short storyteller. ये एक छोटी कहानी लिखते थे फ्रांस में and novelist भी थे ये. Now remember chiefly is the author of Sentimental Tales of Provincial Life in the South of France और अब ये ज़्यादातर फ्रांस के अंदर सेंटिमेंटल स्टोरी लिखने के लिए फेमस है. He was born on May 13, 1840. 13 मई 1840 में इनका जन्म हुआ at Nimes in France. He was a son of a silk manufacturer. ये सिल्क मैन्युफैक्चरर के बेटे थे. In 1849 his father had to sell his factory and move to Lyon. 1839 में इनके फादर ने अपनी फैक्ट्री को बेच दिया और लियोन आ गए. Alphonse wrote his first poem and his first novel at the age of 14. 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी और पहली कविता लिखी. He died on December 16. दिसंबर 16 को इनकी मृत्यु हुई 1897 में in Paris, France. This story is set during the days of France and Persian War. ये जो कहानी है ये फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई के बारे में है जो कि 1870 से 1871 तक रही. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस की हार हुई. पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, पर्शिया जो कि बिस्मार्क के अंडर में था, उसके नेतृत्व में था, उसने जीत हासिल की. At that time, Persia consists of Germany, Poland and some part of Austria. और उस दौरान जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से उसके हिस्से में आए थे. Now the character of the story. Number 1, French. He's a student of a school, Mr. M. Hamel, a teacher of French language. 3. The class consists of some student and some elderly people of the village. 4. Paul Husser, an elderly villager. 5. Sister of Mr. M. Hamel. These are the 5 characters in this whole chapter. Now the brief summary of the chapter. The last lesson written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet ने इस चैप्टर में लिखा है He narrates about the year 1870 और 1870 की बातों को ये नरेट करता है. When the Persian forces under Bismarck attacked and captured France. जब बिस्मार्क के अंडर में इन्होंने फ्रांस पर हमला किया और उसे अपने कैप्चर में ले लिया, अपने पोजीशन में ले लिया. The French districts of Alsace and Lorraine went into Persian hands. The new Persian rules discontinued the teaching of French in the school. और जो नए पर्शियन रूलर आए थे उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच की पढ़ाई पर रोक लगा दी कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकती. The teaching of French in the school of these 2 districts. इन 2 शहरों के अंदर The French teachers were asked to leave. और जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे उनसे कहा गया कि वो ये जगह को छोड़कर चले जाएं. Mr. M. Hamel could no longer stay in his old school. और अब Mr. M. Hamel अपने उस पुराने स्कूल में नहीं रह सकते थे. Still he gave the last lesson to his student. लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक लास्ट लेसन दिया अपने स्टूडेंट्स को. With utmost devotion and sincerity as ever. पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ और पूरी डिवोशन के साथ. One such student of Mr. Hamel, French, और उन्हीं का मिस्टर हैमल का एक स्टूडेंट था फ्रेंच, who dreaded फ्रेंच क्लास, जो फ्रेंच क्लासेस से बहुत डरता था. एंड एम हैमल्स आयरन रॉड, और जो एम हैमल के हाथ में आयरन रॉड रहता था उससे बहुत डरता था. He came to the school that day thinking he would be punished. और उस दिन वो जब स्कूल आया तो उसे पूरी आशा थी कि उसे अच्छी पनिशमेंट मिलने वाली है. As he had not learned his lesson on participle, क्योंकि उस दिन उससे participles पे क्वेश्चंस किए जाने थे और उसने participle के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था. But on reaching school, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा, he found Hamel dressed in his fine Sunday clothes, कि मिस्टर एम हैमल जो थे अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों में मौजूद थे जो अक्सर वो संडे के दिन पहना करते थे. When he go to the mass, जब वो मास प्रेयर के लिए चर्च जाया करते थे, और या फिर वो इंस्पेक्शन वाले दिन उन कपड़ों को पहना करते थे. The old people of the village sitting quietly. Even that class was so different.
बिकॉज जो लास्ट डेस्क्स थी उस पर पुराने ओल्ड पीपल बैठे हुए थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बैठे हुए थे ऑफ द विलेज, गांव के, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीट्स पर. इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था. दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द फ्रेंच वॉज फॉर हिम. और ये पहली बार था जब फ्रेंच रियलाइज करता है कि लैंग्वेज को पढ़ना, उस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था. बट इट वॉज हिज एट लास्ट लेसन इन फ्रेंच. लेकिन ये उसके लिए एक आखिरी फ्रेंच लेसन बन गया था. द स्टोरी डिपिक्ट the pathos of the whole situation. उन सारी situations को about how people feel, कि लोग कैसा महसूस करते हैं when they don't learn their own language, जब वो खुद की अपनी भाषाओं को नहीं बोल पाते और नहीं सीख पाते. It tells us about the significance of one's language. और इसमें हमें उन सब significances के बारे में पता चलता है कि क्या हमें अपनी लैंग्वेज को सीखना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता की पहचान होती है, ये हमारी फ्रीडम की पहचान होती है. वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेस एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू सेव गार्ड इट. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट, फ्रेंच इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल. फ्रेंच बहुत डर रहा था स्कूल जाने से उस दिन, क्योंकि मिस्टर एम हैमल ने उसको पार्टिसिपल्स पे चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए कहा था, बट ही हैज़ नॉट डन सो. उसने ऐसा कुछ नहीं किया था. इवन ही डोंट नो नथिंग अबाउट द पार्टिसिपल्स. नंबर 2, wants to enjoy the beauty of nature, the bright sunshine, the bird chirping in the wood. Partial sources drilling but resisted. फ्रेंच जो था वो इंजॉय करना चाहता नेचर की ब्यूटी को, प्राकृतिक दृश्य को एंजॉय करना चाहता था, प्रकृति को एंजॉय करना चाहता था. इन द ब्राइट सनशाइन, जब सूरज तेज चमक रहा था, बर्ड्स जो थी जंगल में चहचहा रही थी चिड़ियाँ, और पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे. बट रेसिस्टेड, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है. थर्ड, ऑन रीचिंग स्कूल, फ्रेंड्स नोटिस अनयूजुअल साइलेंस. Villagers occupying the glass benches, teachers well dressed, everybody looks sad. और जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो उसको सब कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है, सब कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है. बिकॉज अक्सर जब वो स्कूल आता था तो उसे शोर बाहर तक सुनाई देता था. डेस्क्स का के ऊपर टीचर्स के रूलर्स का रैपिंग करना, डेस्क्स का खोलना बंद करना, चैप्टर्स का रेपिटेशन होना, कई बार तो इतना शोर कि कानों पर हाथ रखना पड़ता था खुद के लेसन्स को पढ़ने के लिए. बट आज ऐसा कुछ नहीं था, सब जगह साइलेंस था. फ्रेंच को ये भी शक होता है कि कहीं आज संडे तो नहीं है. बट व्हेन ही लुक एट द विंडो, जब वो खिड़की में देखता है तो वहाँ उसको क्लासमेट्स बैठे हुए नजर आते हैं. और जब वो क्लासरूम में पहुंचता है, he found that the last benches which always remain empty, जो लास्ट बेंचेस थी जो अक्सर खाली रहती थी वो आज भरी हुई थी. and the teacher was also well dressed, और जो टीचर मिस्टर एम हैमल थे, he was also in his fine dress, वो भी अपनी फाइन ड्रेस में मौजूद थे. Everybody looked sad, और हर कोई उदास नजर आ रहा था. Point number 4, Mr. M. Hamel announces today is the last lesson in French. और जब मिस्टर एम हैमल ये अनाउंस करते हैं कि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, सो फ्रेंच के लिए ये जस्ट थंडरिंग वर्ड्स थे. ये ऐसे शब्द थे जो उसके ऊपर एक बिजली की तरह गिरे. बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लासेस. वो इन क्लासेस से छुटकारा पाना चाहता था. बट टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट. आज बिल्कुल सिचुएशन बदल चुकी थी. 5, French regrets and realizes why he had not taken his lesson seriously. French regret करता है कि उसने अपनी क्लासेस को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमेशा से वो सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, वो अपनी इस लैंग्वेज क्लासेस को अच्छे से सीख लेगा, कल आज नहीं तो कल सीख लेगा. बट आज ऐसा टाइम आ गया था कि उसके पास टाइम ही नहीं था इस फ्रेंच लेसन को सीखने के लिए. और आज ये फ्रांस की अंदर फ्रेंच की लास्ट क्लास थी. Point 6, अंडरस्टैंडिंग द रीजन वाई टीचर इज वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक. उसको लास्ट में पता चलता है कि टीचर्स जो था अपने ये फाइन ड्रेस में क्यों मौजूद थे, मिस्टर एम हैमल अपने फाइन ड्रेसेस में क्यों थे, और इवन जो विलेजर्स थे वो यहाँ पर क्लास में मौजूद क्यों थे. बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ मिस्टर एम हैमल. फ्रॉम लास्ट 40 years ही वॉज सर्विंग दिस प्लेस. पिछले 40 साल से वो इस शहर में
पढ़ा रहे थे और सबको सर्व कर रहे थे, बट आज उनका जाने का टाइम था। सो इसलिए जितने भी विलेजर्स थे, पुराने बुजुर्ग विलेजर्स थे, वो सब यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट करने के लिए आए थे। मिस्टर एम हैमल realizes that all three, he himself, the children and the parents, are to be blamed for losing respect and regards for the mother tongue. यहाँ पर मिस्टर एम हैमल फ्रेंच को पनिश नहीं करते या वो उसे डांटते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज जो फ्रेंच पार्टिसिपल के ऊपर ढंग से लेसन नहीं दे पाया, उसका कहीं कहीं कारण सिर्फ फ्रेंच ही नहीं है, उसके पेरेंट्स भी थे और उसके टीचर भी थे। वो तीनों को ही दोष देता है। वो कहता है कि मिस्टर हैमल ने भी कई बार फिशिंग पे जाने के लिए क्लास को बंद कर दिया था। कभी कभी उनके पेरेंट्स ने भी उनको एडिशनल वर्क के लिए, ताकि इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, उन्हें काम पर भेज देते थे। सो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच जो था ठीक से चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा था, और उसने इस बात का दोष सिर्फ फ्रेंच को ना देकर अपने ऊपर भी और पेरेंट्स को भी देता है। Hamel says French language is the most beautiful language, clear and logical language in the world. Always stay close the mother tongue to your heart, as it is a key of the prison of the slavery. मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से है, क्योंकि ये एकदम क्लियर है और लॉजिकल है। अगर कोई भी अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ा रहता है तो केवल यही मातृभाषा एक चाबी होती है स्वतंत्रता की, गुलामी से मुक्ति की चाबी होती है। That's why he just says that every person have to love their mother tongue. Hamel becomes emotional and writes on the blackboard, "We were love friends." मिस्टर हैमल जब क्लास ओवर करते हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, एंड ही राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड दैट वी वर लव फ्रेंड्स, कि फ्रांस अमर रहे, एंड फ्रेंच रिमेंबर द लास्ट लेसन वेरी वेल। और ये वो लास्ट लेसन था जिसे फ्रेंच बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है हमेशा के लिए। This was a summary of the first lesson of your book, The Last Lesson by Alphys Gordon. If you like this summary, press the like button and subscribe the channel. Thank you.